Hey guys, welcome to Olive Board. This is Aditya. So today we are going to have a discussion around a topic. So it will be a same pattern of group discussion we are going to follow like SBI conduct in their selection process. There are two types of GD which SBI conduct. One, that is the open discussion. Anyone can initiate and start with the introduction. The second pattern is in a sequence where they will be giving you a guidance, okay, start from this end, and one by one everyone will get the chance to accumulate the GD. So here in this video we'll be doing an open GD where all the candidates will have opportunity to initiate the GD. So let's start with the today's topic, that is Women Reservation Bill. So welcome candidates. First of all, introduce yourself in short, one by one. Start from here. Hello sir, my name is Ajit Yadav and I completed my BTech in Computer Science and I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. My name is Ravi and I've done my graduation in BCom and after that I belong to the Varanasi, Uttar Pradesh. Good morning sir, my name is Hridya Manoj. I completed my post-graduation in English Literature. I belong to Kerala. Hello sir, my name is Khushi Devnath and I did my graduation in BBA and I'm from Kolkata, West Bengal. Hello sir, myself Aditya and I have done my Bachelor's of Engineering, Electronics and Communication and I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. Hello, my name is Sujata and belong from Kolkata, West Bengal and I did my graduation from Calcutta University. So guys, today's topic is Women Reservation Bill. You will have 2 minute time to note down your points. Once I'll say you that you can start the discussion. Any one of you can initiate the GD with the introduction. Keep in mind, always start with the introduction. So you can start noting down your points now. Okay guys, now you can start the GD. Please initiate quickly. So coming to today's topic, Women Reservation Bill. So basically in India we really talk about equality. So that's why we are as you see, this is the reservation bill. So this is related to the politics. So as you can see in politics, there are very few candidates, very few female candidates. So basically, to overcome that thing, we have introduced this Women Reservation Bill. So basically, in this bill, there we will be providing 1/3 of the seats to the women who are related to Lok Sabha, Parliament, Rajya Sabha, state legislatives and all. And previously in Lok Sabha there were only 82 candidates, female candidates, which was around 15.3%, and in Rajya Sabha there were around only 32 candidates, which was much lesser than the Lok Sabha. And if we see for the female candidates around the globe, so we can see in Cuba there are 53% female candidates who are in politics, and you can also see in Bangladesh and Pakistan, these two countries are also ahead of us in terms of female candidates, as it is 20% in Bangladesh and 21% in this Pakistan. जैसे कि अभी आपने बात करी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, तो मुझे क्या लगता है कि इक्वालिटी का मीन्स है कि आप जो ह्यूमन जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, जो मैन वुमेन हैं, वो सबकी सेम होनी चाहिए. और जैसे कि आपने बात करी कि किसी भी जैसे समृद्ध देश का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई बिजनेस करे या हर कोई सारी चीज़ें करे. तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में हमारे पास मेन बहुत ज़्यादा है, वुमेन्स कम है, इसीलिए रूल पास हुआ है कि हाँ ये होना चाहिए. लेकिन आप ये देखिए कि हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली कितनी है. अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे कि एक आइडियल फैमिली होनी चाहिए जिसके अंदर मेन जो हमारे काम कर रहे हैं वो नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं, और जो हमारी वुमेन्स हैं वो घर को संभाल रही हैं और चीज़ों को लेके चल रही हैं. उनमें उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. तो मुझे लगता है कि अगर हम इस पॉइंट से देखें कि एक समृद्ध खुश देश कितना है,
सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर नहीं होता है कि हम कितना विकास करें। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास कितनी मनी आ रही, कितनी चीज़ें, हम इंटरनली कितना ग्रो हो रहा है, हम लोग खुश कितना है। क्योंकि आप अगर यूएस साइड पे देखें तो ये कल्चर है कि वहाँ पे वुमेन्स और ये मेंस दोनों इक्वली पार्टिसिपेशन है उनका जीडीपी में। करेक्ट, और वो लोग खुश भी हैं हाँ जी, क्योंकि वुमेन भी काम करती है, क्यों नहीं है खुश। आप वहाँ पे फैमिली का देख लीजिए, फैमिली की सबसे ज़्यादा इश्यूज आपके आज के डेट पे यूएस के अंदर में है। वो चाइल्ड्स को प्रॉपर नहीं संभाल पा रहे हैं। वहाँ पे उनके एक जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए मोरालिटी के ऊपर, जस्ट एजुकेशन ऐसे नहीं है कि आपकी जो आपने बीटेक कर लिया, आपने ये चीज़ें कर ली, लेकिन जो बेसिक होनी चाहिए उसमें माँ का योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूँगा कि अगर आप बोल रहे हैं कि पूरे जो आपका एक माँ का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए फैमिली में, लेकिन हम यहाँ पे भी एक चीज़ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वुमेन है जो एक फैमिली को भी संभाल रही हैं और एक बिजनेस को भी संभाल रही है और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन की बात करें और एम्पावरमेंट की बात करें तो बिजनेस भी वो बहुत अच्छे से चला रही हैं और अच्छे से संभाल रही है एज कम्पेयर टू मैन। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चॉइस ऑफ वोटर होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन को ज़्यादा वोट मिलने चाहिए या फिर मैन को ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। इंस्टेड क्या होना चाहिए, ये जो हम रिजर्वेशन पास कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पास करने के लिए पार्लियामेंट में ये हमें पॉलिटिकल पार्टीज में पास कर देना चाहिए कि वो जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमएलए अपने खड़े कर रहे हैं, तो जैसे 2 एमएलए खड़े कर रहे हैं 1 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के, तो 1 मेल हो 1 फीमेल हो, तो उस पर पब्लिक डिसाइड करेगी अपना कि दिस इज मोर कैपेबल या ये बहुत ज़्यादा कैपेबल है। नहीं तो सीट्स इंस्टेड ऑफ सीट्स पार्लियामेंट दिए है उनको, मतलब पोजीशन के लिए खड़ा कर रहे हैं। अब ठीक है। वो तो इनिशियली डिसाइड होता है, कोई भी सीट के लिए खड़ा होता है तो वो आदमी ऐसा तो है नहीं कि सीट के लिए खड़ा हुआ तो वो सीट पे जाके बैठ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। डिसाइड तो पब्लिक ही करती है ना, वोट तो पब्लिक ही देती है। तो चाहे इंस्टेड आपका मैंडेटरी करने के लिए कि राज्यसभा में और विधानसभा में ये चीजें मैंडेटरी चाहिए कि 30% वुमेन्स होनी चाहिए या इतने % वुमेन होनी चाहिए। इंस्टेड इसकी जगह ये होना चाहिए आपका कि आपने पार्टी के अंदर ही डिसाइड कर दिया है कि अगर मैं 2 कैंडिडेट खड़ा कर रहा हूँ जहाँ पे 50-50 इक्वालिटी है कि एक मैन है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से कैपेबल है और एक वुमेन, और वो हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो केपेबल होंगे उन्हीं को भेजा जाएगा। बट वहाँ और पर रिजर्वेशन रख देना कि जस्ट रिजर्वेशन आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि इंडिया में ये खड़ा कर दिया, पर ये रिजर्वेशन मेनली रखा गया है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। आप ग्लोबली देखिए, जैसे क्यूबा मैंने जैसे मेंशन किया था 53% वहाँ पे हैं, वहाँ पे मतलब इतना जागरूकता है या फिर आप फ्रीडम कह लो कि विमेन अपने लिए खड़े होती हैं, यहाँ पे भी खड़ी होना चाहती हैं, बट आप जानते हो कल्चर कैसा है। लेकिन मेन डोमिनेट मेल डोमिनेंस है मेनली। इंडिया अभी भी मेल डोमिनेट्स कंट्री है, तो इसीलिए अभी तक वो समानता नहीं मिली है वुमेन को जो होना चाहिए। सो इसीलिए रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अदर जहाँ से इंडिया से बहुत छोटी कंट्री है बांग्लादेश, और जैसे कि उन्होंने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान, जहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन है बांग्लादेश में 21% और पाकिस्तान में 20%। इंडिया से बहुत कॉर्नर्स, मतलब कह सकते हैं इंडिया के एक स्टेट के समान वो पूरा ये कंट्री है, बट स्टिल वहाँ पे समानता औरतों की ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आजकल इक्वालिटी की जब बात हो रही है तो इक्वालिटी महिलाओं में और पुरुषों में समान होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने कहा कि औरतों को सिर्फ घर संभालना चाहिए, नहीं, सॉरी, मैं आपको इसमें आपको ठहराना चाहूँगी, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी मेट्रो सिटी में अगर चले जाइए, बेंगलुरु चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कि अगर सिर्फ मेल अगर घर का बाहर का काम करता है तो वहाँ से घर चलना बहुत मुश्किल है। आज के दिन में एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, एक बच्चे के पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उस टाइम में घर प्रॉपरली चलाने के लिए, बच्चे को एक प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए और एक महिला और पुरुष दोनों का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज आपको किसने कहा कि महिलाएं सिर्फ घर संभालती है और खाना बनाती है? आपने मेरा पर्सपेक्टिव नहीं समझा। नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है मैंने कि समझा। आपने अगर कहा आप हैप्पी फैमिली हैप्पी फैमिली का आप मतलब अगर happy family खाना का- बनाने के लिए जाए तो आपको पता है कुणाल एक शेफ है, वो एक लड़का है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। शेफ राजीव है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो लड़कियां सिर्फ खाना बनाती नहीं है, लड़कियां तो देश भी चलाती है। आई एम बिलोंग फ्रॉम कोलकाता, लास्ट 15 साल से एक लड़की ही वहाँ का शासन कर रही है, ममता बनर्जी। आपको पता और जो होगा। पहली जो फीमेल president प्राइम भी मिनिस्टर है थी अभी, And इंदिरा also- गांधी,
Yeah, वो I'm भी एक agreeing विमेन ही with your थी, point. वही चला रही थी देश पहले। अब उन्होंने मेरा point 11 है- साल देश चलाया है। अभी अब मेरा जो प्रेसिडेंट point भी है यहाँ पे हाँ देखोगे तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं वुमेन्स के खिलाफ हूँ, मेरा पॉइंट ऐसा नहीं है। पर आपका मेरा पॉइंट वही कह रहा है, मेरा आपका point पॉइंट ये कह रहा कि है as हैप्पी a फैमिली team- मतलब एज अ फैमिली इधर लाइक फीमेल घर चलाए और जो आदमी है वो पैसा कमा के लाए। नहीं, काम तो आपका घर पे- पॉइंट यही है, आपका पॉइंट आपने जो बोला ना वो मेरा यही point यहाँ पे एक्सप्लेन ये कर रहा आपके है। खुशहाल पॉइंट का क्या, खुशहाल फैमिली का क्या मतलब था? खुशहाल फैमिली मतलब है कि एक टीम में काम हो रहा है, हर एक टीम में हर बंदा हर चीज के कैपेबल नहीं होता, जैसे एक क्रिकेट नहीं तो खाना टीम में बनाने के काम टाइम होता पे भी रहा है। टीम काम कर सकती है। अगर चावल अगर वाइफ बना दे तो सब्जी हस्बैंड भी बना सकता है। ये भी तो होता है। आप सारे काम एक साथ नहीं कर सकते ना। तो एक हर साथ So who बंदा will एक be चीज deciding में the fact that who will be doing what purpose and Yeah. who will be serving what? Who will be And, deciding the main fact that women will be in the kitchen and men will be like Doing bring the nature income works. or अगर आप एज अ किसी भी फैमिली को देख लो तो वुमेन एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है अपनी फैमिली को संभालने में, अपने बच्चों को not grow up करने necessarily, करेक्ट। Mm. not हम हमेशा में। गिव necessarily. एग्जांपल, गिव मी Okay. एग्जांपल, आपकी फैमिली में आपकी माँ से ज्यादा किसने रोल प्ले किया है? So, जितने भी घर के बड़े होते हैं हाँ। वो चाहते हैं कि उनका जो आगे आपकी आया माँ है। का क्या रोल है, आप ये बताइए। मेरी माँ का रोल है, हाँ। देखिए मेरी माँ पर्सनली लाइक नहीं जस्ट उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो अब जो आदमी पढ़ाई नहीं किया है ठीक है तो वो उनको आता है घर संभालना ज्यादा अच्छे से आता है। बाकी पढ़ा सकते थे, उनका पढ़ने का मन होता तो, पर Let's come back to उनको the GD topic. The topic was women reservation. Yeah. So, in Okay. addition to his point, I would like to add that women reservation bill can bring a social change into the society. For example, it can break the traditional gender stereotypes and norms, etc. And also, women reservation bill will emphasize how increased representation of women can encourage them or empower them to take active participation in policy making. So that is the point I would like to add in this. And also the illiteracy rate for women in India is very low. So this bill can help empower the woman and also bring women safety, women rights and hygiene issues into the matter. लेकिन आप देखोगे एज अ पॉलिटिकल पार्टी जस्ट फॉर वोट बैंक दे आर यूजिंग दिस स्कीम। उन्होंने अभी तक ये चीज अगर आप लास्ट बिल में चेकआउट करो, जैसे उन्होंने कश्मीर के बिल सारी चीज़ जो भी आने वाली चीज़ें वोट पे से पहले वो डिस्कस करते हैं कि हम इस आने वाले अपने समय में हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। ये बिल पास होने के बाद भी ये चीज़ों पे बात क्यों नहीं हो रही है? ये दे आर जस्ट यूजिंग फॉर द वोट बैंक। लेकिन इसके वजह से एक बात तो हो रही है, एक वुमेन के बारे में सोचा तो जा रहा है। सर बिल तो कब का आ गया था, सिर्फ सोचने से तो नहीं बिल होता। तो कब का आ गया था, It was बट not पार्टी passed. अग्री नहीं कर It was रही not नहीं हो रहा passed. है। पहले तो आपका तो पार्टी तो We आपकी should भी agree, तो appreciate पास the क्यों नहीं हो रहा है? इसको initiative टाइम they क्यों have लग रहा है इतना? अगर बिल के लिए सारे सपोर्ट में, इवन आपके विपक्ष पार्टी भी आपके सपोर्ट में है, तो ये पास क्यों नहीं किया जा रहा? जब बिल इतना ही इम्पोर्टेंट है, जब आपके नजरिए से, तो ये पास क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर माइंडसेट का खेल है। जैसे अब आपने- आदमी सोचता है कि औरत आएगी बगल में बैठेगी तो हमारे बराबर बात करेगी, तो वहाँ पे माइंडसेट आ जाता है कि वो नहीं चाहता कि मतलब वो आए। आपके हिसाब से जो जिन पार्टी ने पास किया हाँ। है वही इसके खिलाफ है। नहीं वो नहीं खिलाफ है, वो तो साथ होते तो तुरंत पास- इम्प्लीमेंट हो जाता ना, जो साथ वाले हैं। अब आप कांग्रेस को ले लो, कांग्रेस आप जानते हो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बीजेपी के हमेशा अगेंस्ट रहती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी अच्छा काम यहाँ हो। पे तो सपोर्ट किया है ये ना। अच्छा काम हो रहा है ना, अगर अच्छा काम होगा तो बीजेपी का नाम होगा, अगले 10 साल के अगले 20 साल बीजेपी आएगी, ठीक है। ठीक है। वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि जब हम पावर में आए तो हम ये इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो उन्होंने भी तो सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे सबकी तरफ से सपोर्ट है, पर पास नहीं हो रहा है। जो रूलिंग पार्टी वही पास नहीं कर रही है अभी। लेकिन सितंबर में तो ये पास हुआ ना। पास हो चुका है, पास इम्प्लीमेंट हो नहीं चुका हुआ है। है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लानिंग करनी प्लानिंग पड़ेगी। होती है, टाइम लगता है उसके लिए कि किस तरह क्या अब आपने आज पास कर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि कल ही आप इम्प्लीमेंट कर दो, हाँ भाई उठ जाओ आ जाओ इतने सारे लोग, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होगा ना, हमें भी उस चीज एक का proper जागरूक planning होना हो चाहिए। रही है। ठीक है, पर उसकी बात तो होनी चाहिए ना। तो बात हो रही है ना, कि हम इस बार में पास करेंगे नहीं करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर में तो कुछ प्लान होना चाहिए ना कि अपने जो Obviously, पार्टी- ये- हाँ तो इस सिस्टम में इस चीज में नहीं देखिए बात प्लानिंग तो हो चुकी है कि अगले ये अगर 5 दिन ये इम्प्लीमेंट हो गया उससे 15 साल तक ये रहेगा बिल, ये बिल 15 साल तक वैलिड रहेगा। तो इतनी बात तो हो चुकी है, अब इम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है वो चीज़ पे बात हो रही है, ये प्रोसेस में है अभी। ये अभी प्रोसेस। Okay guys, now stop the discussion. I'll give you feedback now.
although in the real GD of SBI, you are not going to get that detailed feedback that how was your performance, or you cannot get that proper idea that what is the marks you are going to get from this particular GD. So there are 2 rounds, one is GD, another one is GE. Each round belongs to 10 marks. 10 marks of group discussion, 10 marks of group exercise. These are the 2 rounds which are usually conducted by SBI every year. I'll be coming to the feedback now. मैं इंग्लिश हिंदी मिक्स करके फीडबैक दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. पहली चीज तो कई बार आप लोग अपने टॉपिक से भटके. मुझे बीच में लग रहा था द टॉपिक वॉज नॉट वुमेन रिजर्वेशन बिल, टॉपिक वॉज खाना कौन बनाएगा घर पे. तो वो एक लग रहा था कि टॉपिक ही चेंज हो गया है जीडी का, उसके ऊपर काफी देर तक डिस्कशन चलता रहा. फिर इट वॉज नॉट द डिस्कशन अराउंड द पॉलिटिक्स एक्चुअली, कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड इन्वॉल्व इनटू द डिस्कशन. वो जरूरी नहीं था, वो हमको अवॉइड ही करना है एज फ्रेंड्स और एज एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्यूचर. सो वेन एवर विल हैव डिस्कशन विल अवॉइड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज फ्रॉम द डिस्कशन. तो उनको हमेशा बाहर रखने की जरूरत होती है. इवन यू शुड अवॉइड टेकिंग नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर मैं थोड़ा बहुत बात करूं, सो अजीत पॉइंट अच्छे दे रहे थे आप, बट कहीं कहीं पर ऐसा लग रहा था दैट यू वर हैविंग डिस्कशन ओनली विद आदित्य, नॉट विद अदर पीपल. तो वो दोनों के बीच में डिस्कशन ज्यादा लगा. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, द डिस्कशन वाज ऑन वुमेन रिजर्वेशन बिल. और सुजाता ने स्टार्ट किया कि मेल डोमिनेंस है. तो मेल डोमिनेंस जीडी में भी देखने को मिल रहा था, दैट वुमेन वर पार्टिसिपेटिंग वेरी वेरी लेस इन द डिस्कशन. तो आप लोगों को इक्वली पार्टिसिपेट करना. इट्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन द ग्रुप. योर परफॉर्मेंस विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल पॉइंट्स व्हिच यू आर पुटिंग इन द ग्रुप. एक चीज काफी अवॉइड करनी होती है जीडी में, वो ये है कि यू शुड नॉट अटैक समवन पर्सनली, दैट आपने ये कहा. और what we can do that, one of my friends said this is the statement, my point of view over this point is something else. मतलब आप समझिए कि हम कैसे बोल रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने ये वाला पॉइंट रखा, मेरा इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. तो आपने किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, आपने किसी का पॉइंट लिया, बताया, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ये है. तो दैट इज अ बेस्ट वे टू कन्वे योर पॉइंट. इन चीजों को थोड़ा सा याद रखना था. कुछ पॉइंट्स खुशी के अच्छे थे और सुजाता के भी पॉइंट्स अच्छे थे. आदित्य, आपको थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन रहने की जरूरत है. थोड़ा सा आप डोमिनेट करने लगे थे ग्रुप में एक टाइम पर, तो वो जरूरी है कि थोड़ा सा आप सॉफ्ट स्पोकन रहो जब भी आप पॉइंट कन्वे कर रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज आर सिटिंग हियर, दे आर ऑन द इक्वल लेवल. तो यहां पर एक टीम लेवल पर डिस्कशन को भी इंडिकेट करता है दैट व्हेन यू आर सिटिंग in future in SBI and you want to take some call, how you are going to discuss on a particular topic or going to put your topic in future. इसको दिमाग में रखिए कि मान लीजिए फ्यूचर में आपकी ब्रांच में एनपीए के केसेस ज्यादा हैं, कम करने हैं, तो उसके ऊपर आपसे पॉइंट ऑफ व्यूज मांगे गए. अब आप सारे एम्प्लॉइज बैठे हुए, आप कैसे पॉइंट रखोगे? क्या हम किसी को अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सेम माइंडसेट से हमको आज भी डिस्कशन करना चाहिए. So if you will be going with that mindset for GD will always be good. Okay? So I hope all of you have got the proper feedback, and I think candidate also got the feedback properly that what to do in GD, what not to do in GD. So best of luck, guys.